topic name is limitation of GDP as an index of welfare. In the last topics in part 1 and part 2 of GDP and welfare, we have discussed the concept of real GDP and the nominal GDP. And in the part 1, I have told you that GDP is the indicator of welfare, because more the GDP of the country, we assume more will be the welfare, as there will be more standard of living, as there will be more housing facility, more health facilities will be available if the GDP of the country is high. Okay? Now, is GDP an adequate indicator of welfare? क्या GDP सचमुच हमारे वेलफेयर को इंडिकेट करता है? क्या ये एडिक्वेट इंडिकेटर है वेलफेयर का, है ना? तो दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड वी नो जीडीपी इंडिकेटर तो है वेलफेयर का, but it is not an adequate indicator of welfare due to some limitations, or due to some drawbacks. What are these drawbacks or what are these limitations in the GDP as an index of welfare that we are going to study? कि GDP welfare का proper indicator क्यों नहीं है ना? And you know कि GDP से एक बड़ा concept है, तुम्हारे 12th class के कोर्स में वो नहीं है, and the concept name is HDI, Human Development Index. उसमें जीडीपी के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आती है, उसमें जीडीपी के साथ साथ एजुकेशन भी आता है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जीडीपी इज नॉट अ प्रॉपर इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर. बट अकॉर्डिंग टू योर 12th क्लास कोर्स, what are the other limitations, what are the limitations of GDP as an index of welfare that we are going to study? So I am talking about the limitation of GDP as an index of welfare. The first limitation is distribution of GDP. When I talk about the distribution of GDP, for example, GDP of the country is increasing. GDP of the country is increasing, but it might happen that the richer becoming very rich and the poorer are becoming very poor. It means the gap between the rich and poor is continuously increasing. ठीक है ना? ऐसा हो सकता है कि कंट्री की इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन जो भी इनकम बढ़ रही है वो रिच सेक्शन के फेवर में जा रही है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी से ज्यादा मैटर ये करता है कि वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है ना? इफ द कंट्री जीडीपी इज इंक्रीजिंग बट एट द सेम टाइम द गैप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, इट मीन्स जीडीपी डज नॉट रिप्रेजेंट द वेलफेयर ऑफ द कंट्री. की इंक्रीज हुआ जीडीपी तो ये वेलफेयर को रिप्रेजेंट तो नहीं कर पा रहा ना, बिकॉज गैप भी तो बढ़ता जा रहा है. हाँ, अगर जीडीपी बढ़ता है और रिच और पुअर के बीच का गैप भी कम होता जाता है, देन इट रिप्रेजेंट द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी. दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज अ फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ adequate. It is not an adequate indicator of welfare. ठीक है? तो I hope you understood the first point, distribution of GDP. एक बार शॉर्ट में और थोड़ा सा मैं बता दूं कि कंट्री का जीडीपी तो बढ़ रहा है, तो इट डज नॉट शो कि कंट्री का वेलफेयर भी बढ़ रहा है. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इफ द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इज ऑल्सो वाइडनिंग, सो दैट्स व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज द फर्स्ट लिमिटेशन which shows that GDP is not an adequate indicator of welfare. ठीक है? Now let's talk about the second limitation. The second limitation is change in prices. The second limitation is change in prices. When I talk about the change in prices, I have already told you, if price rises, nominal GDP also rises, है ना? तो GDP is also affected by the prices, because GDP is the value of final goods and services. And how you will calculate the value of final goods and services? By multiplying the output with the prices. So if the prices increases, we are thinking that the GDP of the country increases, but not. It's just the inflationary nature. Only the prices increases. That's why GDP is not a good indicator of welfare, because it is affected by the prices also. तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि चलो सर, नॉमिनल जीडीपी तो वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है, बट रियल जीडीपी तो वेलफेयर का इंडिकेटर है, क्योंकि रियल जीडीपी में वी टेक द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड बेस ईयर प्राइसेस रिमेन्स कांस्टेंट. बट इट माइट हैपन दैट द बेस ईयर चेंजेस, और अगर बेस ईयर चेंज हो गया तो प्राइसेस फिर चेंज हो जाएंगे. बिकॉज तुम्हें बता दूं, पहले हमारा बेस ईयर काफी टाइम तक 2004-05 था, फिर हमारा बेस ईयर चेंज होकर 2010 और 11 हुआ.
बट इकोनॉमिस्ट को लगा कि ये एक स्टैंडर्ड ईयर नहीं था, तो वो 2011-12 हमने कंसीडर करा, एक सेशन कंसीडर करा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और अभी जो हम लेटेस्ट है, कुछ इकोनॉमिस्ट, कुछ जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, वो कंसीडर कह रहे हैं कि 2017-18 को वी हैव टू टेक द बेस ईयर। ठीक है, तो कुछ डेटा हम इस बेस ईयर को लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ डेटा हम 11-12 को बेस ईयर को लेके कर रहे हैं। तो बेसिकली आई एम टेलिंग यू बेस ईयर कैन ऑल्सो चेंज। सो अगर बेस ईयर चेंज हो गया तो रियल जीडीपी भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। तो सम टाइम ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है ना, अगर मान लो प्राइसेस बढ़ते हैं तो जीडीपी बढ़ जाता है, लेकिन इट माइट हैपन दैट दिस चेंज इज ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस, आउटपुट डज नॉट इंक्रीज, और आउटपुट में भी माइट बी इट गेट रिड्यूस्ड, है ना। तो इट माइट हैपन दैट द जीडीपी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। That's why due to change in price, GDP is not a better indicator of welfare. I hope you understood this. ठीक है ना? The third limitation, that is called non-monetary exchange. When I talk about the non-monetary exchange, I talk about just the barter transactions or the transaction that which cannot be recorded. For example, services of housewife, सर्विसेज ऑफ मदर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फैमिली मेंबर्स टू ईच अदर। अगर मान लो मेरी सिस्टर मुझे पढ़ा रही है, मेरी मदर मेरे लिए खाना बना रही है ना, तो ऑब्वियसली बात है सर्विसेज तो जनरेट हो रही हैं, बट ड्यू टू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द डेटा, है ना, वी कैन नॉट एड इट इन द नेशनल इनकम, बट इट शुड बी एडेड इन द नेशनल इनकम, है ना। तो वेलफेयर तो जनरेट हुआ बिकॉज हमने काफी सारी नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को भी वेलफेयर में तो लेते हैं हम, लेकिन हम उसको नेशनल इनकम में ऐड नहीं कर पा रहे ड्यू टू लैक ऑफ डेटा। तो दैट्स वाई तुम्हारा जो जीडीपी है, बिकॉज ऑफ दिस नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन इट इज अंडर एस्टिमेटेड, है ना, बिकॉज हमने ना तो मदर की सर्विसेज को इंक्लूड करा, ना वाइफ की सर्विसेज को इंक्लूड करा, ना फैमिली मेंबर्स की सर्विसेज को इंक्लूड करा, जो कि इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज सर्विसेज तो जनरेट हो रही हैं, एंड जो भी चीज अगर प्रोडक्शन जनरेट हो रहा है तो इनकम में ऐड तो होना चाहिए, but we cannot add it due to lack of data. That's why this is the limitation. GDP does not consider non-monetary exchange. और अगर ये non-monetary exchange को कवर नहीं करेगा, it means it is a limitation of GDP as an index of welfare. I hope you understood these 3 points. So first point was distribution of GDP. Second point is change in price, and third is non-monetary exchange. Fourth limitation as an index of welfare is externalities. When I talk about externalities, first we have to understand the meaning of externalities. नाम से ही समझ आ रहा है externalities. It means some external factor is affecting other. It means, I am first telling you the definition. Externality means when the action of one either is giving some benefit or harm to someone, but does not paying any compensation for the harm and does not get any reward for the benefit is called externalities. In simple words I am explaining you, अगर कोई पर्सन किसी को अफेक्ट करता है नेगेटिवली, किसी को अफेक्ट करता है, अगर नेगेटिवली अफेक्ट करता है, लेकिन अगर उसके लिए उसको वो पे नहीं करता, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। और अगर किसी पर्सन को कोई अफेक्ट कर रहा है पॉजिटिवली, मतलब उसको कोई बेनिफिट पहुंचा रहा है, बट बेनिफिट पहुंचाने के लिए अगर उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। तो एक्सटर्नैलिटीज मींस व्हेन द एक्शन ऑफ वन either is giving some benefit or harm to someone, but does not get any reward for the benefit and does not pay any compensation for the harm is called externalities, which is of two types, either positive externalities or either negative externalities. I am giving you one example of negative externalities. Suppose करो बेटा मेरी एक फर्म है, ठीक है ना, और जिसमें जो भी चीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, लेकिन जो भी मैं उसमें केमिकल यूज करता हूं अपनी फर्म में, ठीक है ना, जो भी उसके बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको मैं यमुना रिवर में डंप कर रहा हूं, उसको मैं एक रिवर में डंप कर रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं वाटर को पॉल्यूट कर रहा हूं, है ना। लेकिन सिंपल सी बात है, मेरी इंडस्ट्री
जो वेस्ट अपना डंप कर रही है यमुना रिवर के अंदर, है ना, बट इसके लिए मैं कुछ पे नहीं कर रहा, इसके लिए मैं कुछ पे नहीं कर रहा, मतलब मैंने अफेक्ट तो करा। फॉर एग्जाम्पल उसी यमुना रिवर में ना एक फिशरमैन फिशिंग करता है, तो ऑब्वियसली बात है केमिकल जाने की वजह से यमुना रिवर की जो फिशेज हैं वो मरती जा रही हैं, है ना, बट ऑब्वियसली बात है, और जो पर्सन फिशिंग कर रहा है उसको नुकसान हो रहा है ना, बट मैं उस फिशरमैन को कुछ नहीं पे कर रहा, तो दिस इज टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटीज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कार्स चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं, पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, बट कोई किसी को कुछ पे नहीं कर रहा, दैट इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अगर मैं तुम्हें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज का एग्जांपल दूं कि अगर मान लो मैंने अपने घर के बाहर गार्डन बनाया, है ना, उससे मुझे तो फायदा मिल ही रहा है, लेकिन मेरे जो नेबर्स हैं उनको भी फायदा मिल रहा है, ठीक है ना, उनके घरों की वैल्यू भी बढ़ गई है ना, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, बट दे आर नॉट पेइंग मी एनीथिंग, कोई मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा अपने घर के बाहर गार्डन बनाने का, है ना, क्योंकि वैल्यू तो उनके घर की भी बढ़ी है, तो दे शुड पे मी, बट दे आर नॉट पेइंग एनीथिंग, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, है ना। जैसे गवर्नमेंट पब्लिक पार्क्स बनाती हैं, तो हम लोग पब्लिक पार्क्स में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं, बट वी आर नॉट गिविंग एनी रिवॉर्ड टू द गवर्नमेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। सो बेसिकली एक्सटर्नलिटीज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ नेशनल इनकम, इसको ना हमें नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए, बट हम कर नहीं पाते ड्यू टू सेम लैक ऑफ डेटा प्रॉब्लम, बिकॉज मैंने किसी को कितना नुकसान पहुंचाया या मैंने किसी को कितना बेनिफिट पहुंचाया, हाउ डू आई एस्टिमेट, है ना, बिकॉज कहीं ना कहीं इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नलिटीज, बट नेशनल इनकम का रूल तो ये कहता है कि जो भी तुम गुड्स एंड सर्विसेज अगर किसी को प्रोवाइड करते हो तो दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, तो एक्सटर्नलिटीज शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, बट वी कांट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेटा। सो ऑब्वियसली बात है योर डेटा इज अंडर एस्टिमेटेड, how the underestimated GDP can represent the welfare of the economy. That's why GDP is not a good indicator of welfare. Externality is little bit thoda sa crucial point hai. If anybody is not able to understand, mention in my comment box, I'll explain again. So I hope you understood still externalities. The fifth factor is the rate of population growth. The fifth factor is rate of population growth. For example, if the GDP of the country is increasing, है ना, but the population growth is also increasing, है ना. For example, the growth rate of population is more than the production growth rate of goods and services. It means GDP तो is increasing, but welfare is decreasing because the increase in population growth is more than the increase in the production growth rate. So if the GDP is increasing as well as the population growth rate is also increasing, it might happen that the welfare of the country reduces. So that's why only increase in GDP does not represent the welfare of the economy. We can say that per person GDP, per capita GDP should increase. Per capita GDP should increase. Per person GDP should increase. It means GDP, total GDP divided by total population. We can calculate the per person GDP. It should be increasing, it should be increasing, but it also still matter, it is only the average. Distribution also matter कि country का per person GDP, per capita GDP तो बढ़ रहा है, but it does not seems that कि सबको equal मिल रहा है ना, it might happen that जो gap है वो बढ़ता जा रहा है. So I want to say basically कि if the rate of population growth is increasing very high, it means if the rate of population growth is more than the rate of increase in the production of goods and services, then increase in GDP does not represent the welfare. I hope you understood this point. Next point is contribution of some products may be negative. It's a very important point. If the country's GDP is increasing, but the increase in GDP is due to the more production of liquor, due to the more production of cigarettes, है ना, it might happen that कि एक कंट्री की ग्रोथ तो हो रही है, सपोज करो एक कंट्री है और हम देख रहे हैं उस कंट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा है,
बट हमें बाद में पता चला कि उस कंट्री की जो ग्रोथ है ना वो किसकी वजह से है, लिकर के प्रोडक्शन से, सिगरेट के प्रोडक्शन से। तो उस कंट्री का जीडीपी तो बढ़ रहा है बट उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस कम होता जा रहा है। तो वेलफेयर ऑफ द कंट्री क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज कुछ प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन कैसा है, नेगेटिव है। दैट्स व्हाई कंट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रोडक्ट्स में बी नेगेटिव which leads to decrease in the welfare. I hope you understood this point कि सिर्फ जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि कौन से टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। अगर हाँ वीट का, राइस का, है ना, अगर खाने पीने की चीजों का अगर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता है ना, रेदर देन प्रोडक्शन ऑफ लिकर एंड सिगरेट, तो हेल्थ स्टेटस ज्यादा अच्छा इंप्रूव होता। तो दैट्स व्हाई इट डिपेंड्स कि कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट का कैसा है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दैट्स व्हाई ओनली इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट रिप्रेजेंट द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल प्रोडक्ट्स मे नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली टू इकोनॉमिक वेलफेयर। सिंपल सा पॉइंट है, कुछ प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है और कुछ प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन कम होता है वेलफेयर में, लेकिन जीडीपी में तो वी टेक ओनली द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मान लो अगर हम पाकिस्तान इकोनॉमी की बात करें या कोई और इकोनॉमी की बात करें जहां प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन प्रोडक्शन किसका बढ़ रहा है ज्यादा, डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है ना, बट वहां पे लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन उस कंट्री का वेलफेयर नहीं बढ़ रहा, बिकॉज यहां पे ना कंट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली नहीं जा रहा। अगर यहां पर हम प्रोडक्शन करते वीट का, राइस का ज्यादा प्रोडक्शन करते तो ज्यादा लोगों का वेलफेयर बढ़ता। अगर इंडियन इकोनॉमी में हम मिसाइल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पहले खाना चाहिए, पहले उनकी फिजिकल नीड्स हैं, देन उसके बाद उनकी सिक्योरिटी नीड्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हर किसी का कंट्रीब्यूशन अलग अलग है ना। अब कंट्री का जीडीपी तो बढ़ गया क्यों, बिकॉज हमने मिसाइल्स का प्रोडक्शन करा, हमने टैंक्स का प्रोडक्शन करा, है ना, हमने डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करा। तो जीडीपी बढ़ना इट डज नॉट ओनली रिप्रेजेंट द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी, इट्स मैटर कि किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज रिटन ऑल प्रोडक्ट्स में नॉट कंट्रीब्यूट इक्वली। हर किसी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैटर करता है कि तुम्हारी कंट्री में किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है। दैट्स व्हाई ओनली इंक्रीज इन जीडीपी डज नॉट रिप्रेजेंट द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। Even still you have any doubt, you can mention in the comment box. I'll clear your doubt surely. But still, I hope this GDP and welfare part, ठीक है, is divided into 3 parts. First part, second part, and the third part in my videos. So you can see, but you have to start with the first part only. ठीक है, thank you.